Hello everyone, welcome back after your summer vacations and let's continue chapter 2 control and coordination of biology. So बच्चों the topic we going to discuss today is the plant hormone. It is given in NCERT in page number 122. So you will find this topic here. Okay, starting from here and let's read the chapter and understand this topic through these short notes. So today's topic is the plant hormones, right? Plant hormones are also named as phytohormones. First of all, we need to understand what is this hormone, what given here. So bachcho, you must have heard about hormones, insulin hormones, which in the case of the diabetes, and some other hormones like thyroid, because in 8th and in some junior classes you must have read about it. So first of all, what are the hormones? Hormones are the chemicals which are synthesized by the living body. Okay, animals, they also synthesize some kind of hormones, and plant, because they are also living being, they also synthesize some kind of hormones, means the chemicals. And but these chemicals or the hormones are needed in a very low spectrum, means they are needed in a very low amount. Hormones are needed within a range, not beyond that range and not less than that range. Okay, so chemicals which are synthesized by the living body for the growth and the development are called as hormones. Okay, the plant hormones are also named as phytohormones, and because this phyto word has come from the plant, so we can call them phytohormones. And the other name of plant hormones or the phytohormones is PGRS. P means plant, G means growth, RS means regulators, plant growth regulators. So there are three names given: plant hormones, phytohormones, PGRS. You can call these by any of these names. So the phytohormones are divided broadly into two categories. The one which promote the growth of the plant are called as promoters, and the other which inhibit the growth of the plant is called, inhibit means stop. Okay, रोकना. So inhibitors, these are called as inhibitors, और आप इन्हें stress hormone भी कह सकती हैं. ठीक है. So this either inhibitors, either promoters. So promoter जो है वो growth को promote करेंगे, inhibitor growth को रोकेंगे. एक और कैटेगरी है बच्चों जो कि ना कि प्रमोटर में आती है ना ही इनहिबिटर में आती है. सो दिस कैटेगरी जो कि ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करती है, दिस कैटेगरी ऑफ हार्मोन can either be fit into the promoter or inhibitor. So this does the function like promoters and inhibitors. So this can be called as dual function. It performs dual function. Okay, so promoters. What are promoters? What are these names? So there are three hormones which act as a promoter. ये तीनों ही हार्मोन प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं. ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकिनिन. पहले तो आप नाम याद कर लीजिए: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन. ऑक्सिन हार्मोन की ज़रूरत कहाँ होती है? ऑक्सिन हार्मोन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है. ऑक्सिन हार्मोन फोटोट्रॉपिस में आपने पढ़ा था. ऑक्सिन हार्मोन्स जो है वो एट द टिप ऑफ द प्लांट पे सिंथेसाइज होता है. इट आइडेंटिफाई द सनलाइट कमिंग फ्रॉम दिस ओपन विंडो एंड इट एक्चुअली promote the cell division, it promote the growth of the plant toward the sunlight, and that is why the potted plant looks bent toward the sunlight, because this auxin receive the sunlight stimuli and promote the growth of the plant in the direction of the sunlight. So the area which is receiving the sunlight has the auxin. तो जैसे सनलाइट पड़ती है, ऑक्सिन क्या करता है, इस सनलाइट से वो मूव करता हुआ इसको आइडेंटिफाई करके वो उसके पीछे की तरफ बैक साइड में चला जाएगा, तो उस शेडी प्लेस पर जहां पे सनलाइट नहीं आ रही है, एंड देन वहां पर जाकर ये आगे की तरफ सेल ग्रोथ को प्रमोट करेगा. तो सनलाइट यहाँ से आई तो ये पीछे की तरफ चला गया और वहां से फिर उसने ग्रोथ प्रमोट करी. तो इसीलिए अब आप देख रहे हैं प्लांट जो कि सीधा था अब वो बेंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे ही सनलाइट आती है ऑक्सीजन उसको आइडेंटिफाई करके वहां ना रहकर उसके पीछे के एरिया पे जहां पे लाइट नहीं है, शेडी प्लेस पे चला जाता है, एंड देन वहां से फिर वो सेल ग्रोथ को प्रमोट करेगा, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, जिससे कि
प्लांट जो है वो सनलाइट की तरफ दिखता है। तो ऑक्सिन हार्मोन का आपने फोटोट्रॉपिज्म में देख लिया, सेल डिवीजन, इट एक्चुअली हेल्प सेल टू ग्रो and the stem to grow. Okay, so growth, the main function of auxin hormone is the growth. इसके अलावा ऑक्सिन हार्मोन के और क्या फंक्शन है? ऑक्सिन एंड गिबरेलिन और जिब्रेलिन दोनों का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि स्टेम की हाइट या स्टेम की ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन दोनों ही। ऑक्सिन अगर स्टेम की हाइट बढ़ाएगा तो जिब्रेलिन उसकी ग्रोथ बढ़ाएगा, इट मीन्स उसको चौड़ाई में इंक्रीज करेगा। दोनों ही स्टेम की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ओके, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। इसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट हार्मोन which is called as cytokinin. Cyto word is taken from the cell, cytokinin. तो उसके नाम से पता चल रहा है cyto means cell, kinin is a kind of division, kinin. So it helps in the cell division and ये हार्मोन वहाँ प्रेजेंट होगा, दे आर प्रेजेंट इन द ग्रेटर कंसंट्रेशन, जहाँ पे वो एरिया जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन की जरूरत है, जहाँ पे बहुत जल्दी और बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है, दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन। का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि और कहीं मौजूद नहीं होंगे ये, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर वेयर एवर द सेल इज डिवाइडिंग, बट इन द ग्रेटर कंसंट्रेशन दे आर प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, जैसे कि फ्रूट्स एंड सीड। तो फ्रूट्स और सीड को रैपिड सेल डिवीजन की जरूरत है, दैट इज वाई वहां पे साइटोकिनिन बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। उसके बाद बच्चों आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक इनहिबिटर्स, नेक्स्ट कैटेगरी। इनहिबिटर्स को मैंने आपको पहले ही बताया था, इनको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं। तो इनहिबिटर क्या काम करते हैं कि ये प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, ठीक है। And one plant inhibitor name is, which is given in the syllabus, only one is given, abscisic acid or ABA. Abscisic acid और ABA, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ABA भी बोल सकते हैं। विल्टिंग ऑफ लीव्स, जैसे कि पत्तियों का मुरझाना, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का बंद होना। तो ये कुछ ऐसी काम है जो कि देखिए, विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दे आर नॉट एट ऑल प्रोमोटिंग द ग्रोथ, तो दैट इज वाई इट इज द इनहिबिटर जो कि ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है। एंड देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज इथाइलिन, विच इज अ गैसियस हार्मोन। ओके, ये गैस के फॉर्म में रिलीज होगा, इथाइलिन गैस, आप सबको ने पढ़ा ही है उसका बारे में, इथाइलिन के बारे में, एंड दिस इज रिलीज इन द गैसियस फॉर्म। इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो अगर ये फ्रूट को पकने में मदद कर रहा है, इट मीन्स इट इज एक्टिंग लाइक अ प्रमोटर। लेकिन दूसरी तरफ शेडिंग ऑफ लीव्स, ये लीव्स को पेड़ से गिरा भी रहा है, तो दिस फंक्शन इज लाइक इनहिबिटर। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज लाइक प्रमोटर and shading of leaf is like inhibitor. So this, as I told you earlier, this perform dual function, promoter and inhibitor. So that is why it is kept in a different category. Okay, so the PGRS are of 3, promoter, then the dual function and inhibitor. Total कितने hormones आपने पढ़े? ऑक्सिन, गिब्रेलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन and ABA. So total these 4 hormones we have studied.